اور یہ ہے ضلعی عدالت، یہاں سے راستہ جاتا ہے آگے، اور آج جو ہے میں اپنے وکیل سے ملوں گا۔ تو پیارے ویورز، یہ ہے عدالت اور یہاں پہ جو ہے میں پہنچ آیا ہوں صبح۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ویورز ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خوش ہیں، آباد ہیں۔ تو پیارے ویورز، آج جو ہے صبح سے میں لودھرا سٹی میں گیا تھا، کیونکہ آج جو ہے میری پیشی تھی۔ تو عدالت کی طرف سے جو مجھے نوٹس ملا تھا اور وکیل نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے آج پیش ہونا ہے، تو پہلے تو گیا تھا کہ جواب نامہ جو ہے وہ درج کروانا تھا۔ تو سردی بہت زیادہ تھی آج صبح جب میں وہاں پہ پہنچا، تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ریحانہ سسٹر بھی یہاں موجود ہیں، صبح یہ اٹھی ہیں اور انہوں نے جو ہے ناشتہ تو بنایا، ناشتہ بھی میں نہیں کر سکا، تو ابھی میں واپس آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے تو مل جائے گا، تو اس نے کہا ہاں بھائی بیٹھو کچھ بناتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، ہاں آج وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عدالت پہنچنے کے بعد کیا ہوا اور کتنا بڑا آج مجھے جو ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ صدمہ پھر سے ایک مل گیا ہے لائف میں۔ تو الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات کا کہ پہلے بھی جتنی مشکلات آئی ہیں وہ بھی اللہ پاک نے مدد کی ہے، اور ان سے جو ہے چھٹکارا ملا ہے مجھے۔ اور آج اگر چھوٹی سی مشکل آ گئی ہے تو میں نے جو ہے اتنی بڑی ٹینشن نہیں لی، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہو سکتا ہے زندگی میں میرے لیے۔ تو آج جو باتیں میں آپ بہن بھائیوں سے شیئر کرنے والا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کی زندگی میں بھی بہت سارا کام دیں گی۔ تو جو میری بہنیں اور بھائی چینل پہ نیو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، خوشیاں دے۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، آج میں کچھ لے کے آیا ہوں، وہ بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریحانہ کیا کر رہی ہے وہ بھی آپ سے بات کرتی ہے۔ تو باقی جو ڈیٹیل ہے عدالت میں کیا کچھ مجھے ملا ہے، انشاءاللہ العزیز، جو مطلب انہوں نے میری جو پریویس وائف تھی اس نے مجھ پہ کیا مطلب کیس کیا ہے، وہ ریحانہ کے پاس پیپر ہیں، تو وہ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔ تو امی کو تو میں نے نہیں بتایا یہ جو بھی مطلب آج بات ہوئی ہے، جو بھی عدالت میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ پیپر اٹھانا، میں اپنے پیارے ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کچھ مطلب نوٹس مجھے ملا ہے۔ تو ان کو اٹھاؤ، میں دکھاتا ہوں کیمرہ سائڈ سے کر کے۔ تو پیارے ویورز، اب دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ پہلا صفحہ ہے، یہ مطلب نکاح نامہ تھا، نہیں یہ تو نکاح نامہ تھا میرا، اوپر سے دکھاؤ نا۔ تو ویورز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دعویٰ نکاح ہے ساجدہ پروین بنام جاوید اختر۔ تو یہ مجھے نوٹس ملا ہے عدالت کی طرف سے، تو میں نے جو ہے اس کی کاپی کروا لی ہے۔ نیکسٹ اس کا صفحہ کھولنا، سیدھا کرنا اسے۔ بس اب میں نے اس کو سیدھا کیا ہے کیونکہ ریحانہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 52,000 زیورات 4 تولے، یہ سونا 9 ماشے، یہ گرمیوں کا سامان، بستر، برتن، بالٹیاں، یہ سب کچھ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ اگلا صفحہ کھولتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مالیت اوپر لکھی ہوئی ہے 74,720 روپے۔ پھر نیچے ایک اور لسٹ آ رہی ہے، واشنگ مشین، سلائی مشین، کرسیاں، ڈبل بیڈ، جس کا ہمارے گھر میں کوئی نام نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ ٹوٹل بھی دیکھ سکتے ہیں، 10,37,000 روپے یہاں تک بنے ہیں، یہ جو لسٹ ہے اس پہ۔ تو پیارے ویورز، یہ اگلا صفحہ ہے جس میں اس نے جو ہے سامان کی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں 71,07,200 روپے، اور باقی بھی کچھ ہیں پیسے جو انہوں نے لکھوائے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ 86 لاکھ روپیہ ہے ٹوٹل۔ اسے دیکھ کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ جو میرے بھائی کو گفٹ ملا ہے اس کی بیوی کی طرف سے، کیونکہ اس بیوی کی طرف سے جس سے ہم نے اتنا پیار کیا، ہم سب جو ہے وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ میرے بھائی نے میری وجہ سے رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی کو اور میرے والدین نے
क्योंकि वो मेरी फूफो की बेटी थी। हम फूफो को दुख नहीं देना चाहते थे किसी भी सूरत। इस वक्त उसकी शादी के 1 साल बाद ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई और उसकी डेथ हो गई। ये हमारे दिल में कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा किया उसका रिश्ता लेकर। हमने हमारे सामने जो भी मुश्किलात और मसाइल हुए, हमने उनका जो है सामना किया बरादरी वालों के साथ खिलाफ होके, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप रिश्ता ना लें जब आपका एक जोड़ नहीं है। क्योंकि आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता वहाँ पे पहले ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बावजूद मैंने भाई को मनाया, इस अपना दुपट्टा उतार के मैंने भाई के कदमों में डाल दिया और कहा मेरी ज़िंदगी जैसी भी गुजरे, जहाँ भी मेरा नसीब होगा वो मैं जानूँ और मेरी किस्मत जाने, बस आप भाई मेरी कज़न से शादी कर लें, क्योंकि वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। और मेरे वालिदैन, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कोई भी दुख नहीं देना चाहते थे। और हम चाहते थे कि हमारी जो फूफो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हमारी वजह से कोई भी वो टेंशन ना ले जिसकी वजह से अल्लाह ना करे उसे कुछ हो जाए। तो हमारे सारे घर वालों की इसरार पर भाई ने जो है, पहले तो वो गैरत की वजह से, क्योंकि मैं उसकी बहन थी, जब इंसान का दिल टूटता है तो आपको पता है आपके बहन भाई सबसे ज़्यादा आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन मैंने अपनी परवाह किए बगैर अपने भाई को मनाया और मेरे वालिदैन ने भी मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारे दिल में कोई मलाल नहीं है कि हमने जो भी किया वो अच्छे के लिए किया, लेकिन हमारे साथ इस सूरत में बुरा होगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम सोच भी कैसे सकते थे कि हमारी जो कज़न जो हमारी बहनों की तरह है, हमने कभी उसे भाभी तक नहीं बुलाया, क्योंकि वो मेरी बहन थी। 3 साल बाद मेरी शादी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 2 बच्चे हैं। वो भी मैंने शादी सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ैसला इसलिए किया था कि मैं इनकी ज़िंदगी में रहकर कोई भी मसाइल खड़े नहीं करना चाहती थी। नहीं, वट्टे सट्टे का सिस्टर वैसे भी रिवाज नहीं है और मैं भी नहीं चाहता था। वो बात आपकी भाई बिल्कुल ठीक और है, मुझे एक लेकिन बात की समझ नहीं आती, जब वो अपना सामान लेके चली गई है तो उसने ये झूठा दावा और इतने 86 लाख रुपया किस इंसान सोच पे लिखवाया है, यही ये तो समझ बात नहीं आ है, रही। यही तो दुख है हमें जो कुछ उसने किया। हमने बहुत सारे जो हमारे मोअज़्ज़िज़ फैमिली मेंबर्स थे, हमने उन्हें भेजा। भाई वहाँ पर गए, 3-4 बार गए, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि इस वक्त जो है वो मेरी फूफो की डेथ हो चुकी थी। वही वाहिद इंसान थी जिसकी वजह से ये रिश्ता बच सकता था। नहीं, मैं लेकिन तो वो अब ये अब नहीं, मुझे नहीं है। हंसी भी आ रही है इन पैसों पे। लेकिन अब मुझे सिर्फ बहुत दुख हो रहा है। आप आपको भाई सच आपको मान, मैं आपका ये जो नोटिस है देख कर मेरे दिल में जो है वो छुरियां सी चल रही हैं। नहीं, बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये 86 लाख रुपया देख के इसलिए हंसा हूँ कि इंसान की जो औकात फितरत होती है है ना, वो बात सुनो, जो इंसान की औकात होती है, जो सोच होती है ना, वो आपको इस सूरत में भी नजर आती इस सूरत में भी जो प्यार के रिश्ते हम बनाते हैं, है। उसको पैसों में नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये ये आप कुछ सोच लोग पैसों जाइए। में भी तोल देते हैं, वो ठीक है। कहते हैं अगर रिश्ता तो वैसे ही हमारा ख़त्म हो रहा है, जब फैसला भी उसी का है, घर छोड़ने का भी और अपने हस्बैंड को भी छोड़ने का, तो ये सब कुछ करने का वो तो वैसे एक बात वहाँ बताऊं से मैं, वो ऐसे अगर सही तरीके से पैसे मांग लेते तो शायद मैं दे देता, लेकिन उन्होंने ये जो कदम उठाया है ये तो अब इसमें तो सिर्फ हमारी बदनामी नहीं है, इसमें उसकी भी है, क्योंकि हमारे जो पूरा ख़ानदान है उसमें कोई भी जो लड़की है वो इस तरह से जाकर खुला का मुझे दावा तो करके टेंशन और हो गई तलाक ना, मुझे तो खुद अपने टेंशन मुंह हो से गई। कभी नहीं मांग सकती। मैं एक शादीशुदा लाइफ ज़िंदगी गुजारी हूँ, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन इनकी लव मैरिज थी। उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो भाई से, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा जो है वो फ़ैसला कर लिया था और हमने भाई को भी मना लिया और मैंने अपने दिल पर पत्थर भी रख लिया था। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि कल को वो हमारे साथ, वो कहते हैं ना गरीबी जब दरवाजे से जाते तो मोहब्बत जो है वो रोशनदान से निकल जाती है, तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया। सही उस कहा। वक्त हमारे हालात कुछ टफ थे, लेकिन उसने मुकाबला करने बजाय भाई को भी छोड़ा और हमारी फैमिली को, पूरे ख़ानदान में जो है वो उसने रुसवा किया है। ये जो बात है ना, ये ना तो अब्बू भूल सकते, क्योंकि आज तक हमारे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया। चाहे जितने पहले तो उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन में भाई को और अब्बू को बुलवाया और वहाँ पर इंक्वायरी रखवाई और पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन जब उनकी वहाँ पर दाल नहीं गली तो फिर वो आगे चल पड़े। यही बात जो है अब्बू ना पूरी रात सो नहीं सकते, यही बातें सोच करके। मेरी भांजी
जो मेरी बहन की बेटी है, अब मेरी बहन जिंदा होती तो मैं जाकर अपनी बहन के कदमों में बैठ जाता और उसे कहता क्या मैंने इसलिए आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ भला किया था और अपनी भांजी को अपने घर अपनी बेटी बना कर ले आया था, अपनी बेटी की खुशियों को रौंद कर, जो आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो क्या करें, बस अल्लाह ताला को यही मंजूर था। मेरी फूफो को शायद अल्लाह ताला ने ये दुख नहीं दिखाना था। जो कुछ वो कर रहे हैं, उसकी फैमिली उसका साथ दे रही है, इस बात का भी हमें दुख है। बहनें और भाई जो होते हैं और ख़ास तौर पर वालिदैन जो होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी बेटी जो है वो एक जगह से बेटी का घर उजड़े, एक जगह से तलाक ले और दूसरी जगह पर शादी करे या ना करे, वो तो उसकी मर्जी है, क्योंकि अब सब कुछ सब घर वालों ने उसी पे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। उसे समझाते, उसे कहते कि आपका घर वही है। अगर औलाद देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, औलाद नहीं है तो कभी हमने उसे ताना नहीं दिया। हम अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल जो है वो कोई हमें दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, दुख नहीं है कोई। अगर हम उस पे ज्यादती करते तब हमें दुख होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात से जो है वो खुश हैं कि जो कुछ भी वो कर रही है अपने साथ खुद ही कर रही है। सही बात है। तो इसको देखो, इसने बैटरी निकाल दी है। हाँ, बस इससे तो यही काम करने आते हैं ना। तो प्यारे व्यूअर्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ। तो सिस्टर, बात मुझे कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह देगा। लेकिन जो है ना, जब कोई इंसान जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा हो, जब आपके साथ कोई अब ये प्यार मोहब्बत यहीं पे खत्म हो गया है ना। हाँ, वो तो नजारा है। हाँ, जब बस पैसा सब कुछ है, खत्म होता है तो ये दौलत और इसने यहीं पे रह जाना है। प्यार, इखलाक और जो अच्छे अमाल होते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। बस अब क्या कर सकते हैं, जो अपने शौहर के साथ इतना कुछ कर सकती है, हम उसके लिए क्या है बस। जी, तो प्यारे व्यूअर्स, रिहाना कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और जो है ना, मैंने इसे कहा कि मैंने कहा ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है बहन जी, ये ज़िंदगी में व्हाट्सएप एंड इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और मेरे ख्याल में इन चीज़ों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो आज की वीडियो को मैं आपको प्यारे व्यूअर्स हमारी लाइफ में जो रियलिटी है वो आपको दिखा रहे हैं और मैं आपको एक मतलब एज ए एग्जाम्पल यानी कि एक बहुत बड़ा लेसन देना चाहता हूँ कि अक्सर आप जब अपने प्यारे, अपने बहुत क्लोज रिश्तों के बारे में जो कुछ सोच रहे होते हैं ना, कि आप कहते हैं कि ये दिलो जान से हमारे साथ हैं, हमारा साथ देंगे, तो वही रिश्ते आपको कभी कभी ऐसी सूरत में भी धोखा देते हैं। तो जो अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसी लड़की है कि वो कह रही है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ वफा भी करे, ठीक है ना। तो वफा ये नहीं होती कि घर में आ जाए और उसके बाद जो है 2-4 साल आपकी ज़िंदगी में रहे, उसके बाद आपको छोड़ के चली जाए किसी रीज़न की वजह से, छोटी छोटी नौकरियों की वजह से या छोटे छोटे मसाइल की वजह से वो आपको छोड़ के चली जाए तो आप ऐसा समझे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। प्यार इसका नाम नहीं है, प्यार कुर्बानी देने का नाम है, ठीक है। प्यार इज्जत रखने का नाम है। तो जो आपकी अपने मुआशरे में, अपने घर वालों में जो लड़की आपकी इज्जत रखवाएगी, आपको इज्जत देगी, आप भी उतनी उससे रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है ना, आप उसके साथ फ्रेंडली रहोगे, तब भी वो अगर आपकी कदर नहीं करती तो उसका फैक्ट है। तो ये आपका मसला नहीं है, वो उसकी ऐसे समझ लो कि वो कम ज़र्फी है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे 86 लाख रुपया उसने लिखवा दिया है। अब इसमें से कितनी जो है अदालत क्या कुछ करती है वो तो बाद का फैसला है, वो बाद में होगा। लेकिन आप बहन भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बहन भाइयों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो हमारी अदालतें ख़ास तौर पर अदलिया है, ठीक है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसाफ कर रही है। हमारे पाकिस्तान का जो निज़ाम है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसने लिखवा दिया है सब कुछ, हालांकि वो अपना सामान वगैरह ले जा चुकी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके हक़ में फ़ैसला हो। लेकिन जो भी अदलिया का फ़ैसला होगा वो हमें मंजूर है। कानून इसलिए बना हुआ है कि वो राइट फ़ैसला करे। तो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। मेरी ज़िंदगी में इससे कोई बेहतर इंशाअल्लाह अज़ीज़ चेंजिंग आएगी और कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि कल से जो है अम्मी जान बड़ी परेशान है। तो आज मैंने उन्हें ये जो सुबह से अदालत गया हूँ तो ये फ़ैसला उन्हें मैंने नहीं दिखाया और मैंने दिखाना भी नहीं है। तो जब तक ये फ़ैसला नहीं होता उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके वालिदैन को खुश रखे,
زندگی میں ہمیشہ فیس کرنا سیکھیں، ہمیشہ اپنی زندگی کو مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں کہ کوئی آپ کو گرا نہ سکے، خوشی سے ہر چیز کو فیس کریں، یہ سب سے بڑا لیسن ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ روٹین کے مطابق ہی انشاءاللہ آئے گی، ہم اپنی صبح کی، دوپہر کی، شام کی روٹین دکھائیں گے، کیونکہ آج یہ پیشی والا معاملہ تھا تو یہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مزید آگے جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔